Welcome back, students. Today we are going to start chapter 4, Special Methods of Plant Reproduction. In plants, generally reproduction takes place through asexual means. They are called special methods like apomixis, gamospermy, micropropagation, vegetative propagation. Apomixis. हेंस विंकलर के अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होगा और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेस आ जाते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स के अंदर। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, इट इज़ नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इन दिस एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल nucellus or integuments other than gametophyte or embryo cell. Alternation of generation is not found in this embryony. There is no meiosis and fertilization. क्योंकि हमें पता है गैमेट फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और मियोसिस भी नहीं होगी। नेक्स्ट, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी सेल ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल. It is further divided into 2 types. When the development of embryo takes place from unfertilized egg, very important, then this process is known as parthenogenesis. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा अनफर्टिलाइज एग से तो इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड वन इज़ व्हेन एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर फ्रॉम एनी हैप्लॉइड सेल ऑफ द एम्ब्रियो. कोई भी हो सकता है वो हैप्लॉइड सेल, जैसे कि सिनर्जिक या एंटीपोडल सेल, तो उसे कहते हैं एपोगेमी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पंचम महेश्वरी, एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट इज डिफरेंशिएटेड एज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड रिकरेंट एपोमिक्सिस, एंड दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एपोमिक्सिस एंड वेजिटेटिव एपोमिक्सिस. तो हम इनको ही डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. A haploid embryo sac develops from megaspore mother cell by meiosis in this apomixis. When haploid embryo is developed from haploid egg without fertilization, जब भी विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको पार्थिनोजेनेसिस टर्म से इंडिकेट करते हैं, और हैप्लॉइड है तो इसलिए हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस. जॉर्जेनसन was first to study this process in plants. If embryo give rise to an other cell of female gametophyte other than egg cell is called haploid apogamy or androgamy. This condition is found in maize and dhatura. Second one is recurrent apomixis. This apomixis is also called as incomplete meiosis. So in apomixis, the female gametophyte has diploid chromosomes like the mother plant. It is of 2 types: generative apospory and somatic apospory. In generative apospory, embryo sac develop from diploid cells of archisporium. Diploid cells of embryo sac form diploid embryo. And in somatic apospory, diploid embryo sac develops from diploid cells of nucellus or integument. As the development of this type of embryo sac does not involve meiosis, meiosis नहीं होगा तो इसलिए हमेशा ये diploid रहेगा. Third one is adventive embryony. In this process, embryo development, any haploid cell of ovule like nucellus or integument outside of embryo sac is called एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. मतलब इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसी भी हैप्लॉइड सेल से हो जाएगा, या तो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफाइट बटिंग और इट इज़ फाउंड इन लेमन एंड मैंगो. Fourth one is vegetative apomixis. In some plants, vegetative buds are produced instead of flowers. These are germinate of parent plant.
वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं और फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये अपने मदर प्लांट से डिटैच होकर फर्दर न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट, वेरी इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। इन एपोमिक्सिस म्यूसिस डिवीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व, म्यूसिस नहीं होगा, क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट और रिकम्बाइन, सो plants obtained by this process are similar to the mother plant, बिल्कुल मदर प्लांट के जैसे रहेंगे। तो जब क्लोन बनाना हो तो एपोमिक्सिस हम काम में लेते हैं। सेकंड, as seed are also produced by asexual reproduction, so clone individual just like mother plant can be produced in apomixis. We can conserve the beneficial characters for a long period in crop by this process। जैसे कोई कैरेक्टर हमें जैसे कोई प्लांट है और उसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो बहुत जूसी फ्रूट्स आते हैं, तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो लॉन्ग पीरियड तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। दिस मेथड इज़ यूजफुल टू प्रोड्यूस hybrid seeds because it prevent loss of degeneracy of specific features in them, और इसमें ये लॉस ऑफ डिजेनरेसी को बचाता है ये मेथड। नेक्स्ट, एगेमोस्पर्मी। इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट सीड ही रहेगी जैसे अपना दूसरे प्लांट नॉर्मल प्लांट प्रोसेस में होता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस सीड इज़ डिप्लॉयड बट ऑल इट्स जीन आर ऑफ मदर प्लांट, इट कैन बी कैरीड आउट बाय वेरियस मेथड्स। डिप्लॉयड तो रहेगा लेकिन जितने भी जीन्स होंगे सारे मदर से ही रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो प्रोपगेशन। बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टेक्निक है ये। इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड से प्लांट का कल्चर किया जाता है इन विट्रो कंडीशंस में, और कंडीशंस एकदम स्टरलाइज्ड और कंट्रोल कंडीशंस होती हैं। द प्लांटलेट्स डेवलप्ड बाय दिस प्रोसेस आर देन एक्सेप्टेड बाय कन्वेंशनल मेथड। By this method, many plants can be produced per square meter and the propagule can be stored longer and in a smaller area. And note, there is no effect of external environment on this method. और ये मोस्टली ऑर्किड्स, ग्लैडियोलस एंड क्राइजेंथेमम में प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रियोनी। मोस्टली a seed contain an embryo in one plant, एक ही एम्ब्रियो होता है एक सीड में, बट when more than one embryo develops in single seed, the development of more than one embryo from ovule, seed or fertilized ovum is called polyembryony। ये दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में मिलती है। In 1719, Anthony van Leeuwenhoek first described polyembryony in the seed of orange. It is a common feature of gymnosperm। जिम्नोस्पर्म में होती ही है, whereas it is found in some angiosperm में भी देखने को मिलती है, जैसे लेमन, टोबैको, एलियम, क्रोटलेरिया। In most of these plants, only one embryo develops in one seed, another embryo degenerate during development of embryo। जैसे कुछ प्लांट वेंडा जो कि एक एपिफाइट है, इसमें भी बहुत सारे मैच्योर एम्ब्रियोज होते हैं जो सीड के जर्मिनेशन पे पाए जाते हैं। अब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के। फर्स्ट, क्लीवेज इन प्रो एम्ब्रियो, जो प्रो एम्ब्रियो बना है उसके अंदर डिवीजन हो जाएगा। सेकंड, अलोंग विद एग सेल इन एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल्स टू। एग सेल से तो बनता ही है एम्ब्रियो, और कभी कभी एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सेक के दूसरे सेल से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड वन, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन एन ओव्यूल, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो जाएगा सिंगल ओव्यूल में। बाय द नेक्स्ट, फोर्थ, बाय द एक्टिवेटेड स्पोरोफाइटिक सेल इन ओव्यूल,
जो स्पोरोफाइटिक सेल है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा और जो फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। पॉलीमेम्ब्रेनी इन प्लांट्स इज डेवलप ड्यू टू द अबव मेंशन रीज़न, और इन्हीं रीजन्स की वजह से होती है। अब जैसे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, इसको डिटेल में देखते हैं हम। इन दिस पॉलीएम्ब्रियोनी मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप ड्यू टू क्लीवेज इन जाइगोट और प्रो एम्ब्रियो, और ये 3 वजह से होती है। फर्स्ट, ड्यू टू एबनॉर्मल क्लीवेज इन oospore, a mass of cell is formed which develops with increase in cell and form many embryos। जो oospore है उसके अंदर एबनॉर्मल डिवीजन होने की वजह से। सेकंड, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स और आउटग्रोथ फ्रॉम द प्रो एम्ब्रियो एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो, बहुत सारी बर्ड्स बन जाएंगी या आउटग्रोथ बन जाएगी और ये फिर बाद में एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाती हैं। Last one, filamentous embryo. In this polyembryony, the proembryo becomes branch and embryo develops from each branch। जो proembryo है उसके अंदर branches आ जाएंगी और ये जितनी भी branches आएंगी और further embryo के अंदर develop हो जाएंगी। Development of embryo from cells of embryo sac other than the egg cell। In this type of polyembryony, fertilized or unfertilized synergids develop into embryo। The embryos developed from these synergids are respectively diploid भी हो सकते हैं और haploid भी हो सकते हैं। Diploid in case of Aristolochia bracteata and haploid in Agrimon mexicana। Third reason, development of more than one embryo sacs in the ovule। In some angiosperms such as Casuarina montana, more than one embryo sacs develop in an ovule and each egg cell in each ovule after fertilization forms embryo। Therefore, more than one embryo develop in one ovule। Last one, adventive polyembryony। Sometimes the cells of nucellus or integuments activates एंड फॉर्म्स एम्ब्रियोज इन ओव्यूल। जो न्यूसेलस है और इंटेग्यूमेंट है वो खुद उनका इतना एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियो एंड अ प्रोसेस एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियो। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी जैसे हॉर्टिकल्चर में, साइटोलॉजी में, जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियो जो न्यूसेलस से डेवलप होता है वो मदर प्लांट का क्लोन होगा, बिल्कुल भी उसके अंदर वेरिएशंस नहीं होंगे। सेकेंड वन, प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूसेलस आर विगर इन नेचर, स्ट्रॉन्ग टाइप के होंगे। थर्ड, एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस आर डिजीज फ्री, और जैसे वायरस फ्री क्लोन बनाने हैं हमें तो वो पॉलीएम्ब्रियोनी से बना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो आर रियली इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल की स्टडी में। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोज कैन बी डेवलप्ड इन होमोजाइगस लाइन्स आफ्टर कॉल्कीसीन ट्रीटमेंट विच हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इस बिल्कुल प्योर होमोजाइगस लाइन बनती है जब इसको अपन कॉल्कीसीन ट्रीटमेंट देते हैं तब। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये आपने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रखा है। ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।